Okay, so good morning again and welcome back. The patented dialogue. And I see already good morning messages from Arnav Geet Verma and Harshit Lohani. Chalo. So yesterday we were discussing about gravitational field intensity. है ना? So we will take up that again. Good morning, Kar. We'll take up that again. Today our focus is slightly different. है ना? और अगर मान लो, let's say, if I ask you draw the graph of, यानी आज का टॉपिक है पहली बात तो ग्रेविटेशनल फील्ड intensity. ठीक है? Now, what is the purpose of knowing gravitational field intensity? The answer is that I actually want to know the force that a mass will experience if it is kept at a point. Now, let's see, if I don't define gravitational field intensity, then what will happen is that every time I keep a new mass, I have to do a fresh calculation. Every time I, keep a mass, I have to do a fresh calculation. So the benefit of knowing gravitational field intensity at a point is that I already know what force will a 1 kg mass experience. तो अगर मान लो 3 kg mass के ऊपर force निकालना है तो क्या करेंगे into 3. 79 kg के ऊपर अगर निकालना है force तो into 79 कर दो. That is what the benefit is. यानी actually my purpose is not to find out gravitational field intensity. My purpose is to find out force. And by the way, as I said, gravitational field intensity is a vector quantity. Okay, and how do I find out force? We just need to multiply it by the mass that I have kept at the point whose gravitational field intensity is known. So that is the language actually. So sometimes pay attention not just to the concept, I mean, of course we have to, but sometimes pay attention to the language also, because the language sometimes has a lot of intent. उससे चीजें कन्वे होता है, ठीक है ना? इसलिए मैंने बोला. Oh, some more in the pipeline. चलो, तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से फोर्स निकालने में सहूलियत होता है. दैट्स द पर्पस. चलो, आज हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स. So draw gravitational field intensity variation for this. So draw the gravitational field intensity variation for this. Let me say this is E, this is position. ठीक है? And then I will ask you one or two more. ये M, and let's say separated by some distance R. So these are some of the things which are known, and you have to draw the graph of field intensity variation with position. अभी फिलहाल मैंने क्या किया ना, डेलिबरेटली मैंने दोनों का मासेस इक्वल लिया, M and M. ठीक है ना? Okay, Arnav has made a comment, and that is, will it decrease exponentially? The answer is exponential का मतलब होता है e to the power something या something to the power something. तो यहाँ पे उस तरीके से नहीं कहना चाहिए. यहाँ पे कहना चाहिए कि it will decrease, but yes, it will no doubt decrease, but not exponentially, but inversely proportional to the square of distance. That's how it will decrease. Chalo, so I think you must have drawn the graph by now. I am also drawing it. Okay. I mean, in the meanwhile, in fact, draw both the graphs. Draw both the graphs. And then I'm going to intervene to give the final answer. Answer to मैं दूंगा obviously, but in the meanwhile, draw both the graphs. ठीक है?
Okay, let me see what is the nature of this graph. Okay, Deham says this will decrease inversely proportional to the square and at one point it will become 0. Okay, related to the graph, I have given a polling में अभी तक सिर्फ 4 जने पार्टिसिपेट किया, ये क्या चक्कर है? अब 5 हुआ बड़ी मुश्किल से। लगता है सुबह सुबह जो है ना, सबके आंखें अभी नींद से भरा हुआ है। जैसे अगर इलेक्शन होता है, जब देखा होगा कि देखना न्यूज वाले हर आधे घंटे बाद बताते रहते हैं, अरे ये पोलिंग बूथ में इतने लोग आ चुके हैं, इतने लोग आ चुके हैं, 10% हो चुका है, 15% हो चुका है, इस तरीके से। तो मुझे याद है अभी भी J&K में, क्योंकि कम पोलिंग होता है थोड़ा सा, तो कई बार रिपोर्टर्स जाते हैं, मान लो पोलिंग शुरू हुआ 8 बजे, 10 बजे वो गए ना। इस कंस्टिट्यूएंसी में 30,000 वोटर्स है, लेकिन सिर्फ 4 जने ने अभी तक वोट दिया। तो वो सुबह सुबह यही कहानी होता है वहां पे। अच्छा, ऊपर से ठंड भी होता है वहां पे, तो ये भी एक वजह है। चलो, एनीवे, टिल नाउ 19 हैज वोटेड, आई मीन 19 हैज वोटेड। वैसे बाय द वे, ये जो पोलिंग मैं करा रहा हूं वो इस ग्राफ के लिए, कि जो ग्राफ बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट्स में बनेंगे, 1 और 2 में बनेगा, 2 और 3 में बनेगा, 2 और 4 में बनेगा, या नन ऑफ दीज होगा। चलो, लेट मी फाइनली गिव द आंसर। वैसे अभी भी बहुत कम लोगों ने पोल किया, ये क्या चक्कर है भाई? टाइम खत्म होने वाला है। चलो, I think finally I will put an end to it. 27 people have voted. I don't know why it is less. क्रिश says कि मैं तो अभी जस्ट उठाई हूं। वो तो मुझे लग ही रहता है पोलिंग, लग ही रहा था पोलिंग देख के कि सभी लोग जो है यही अभी उठे हैं। चलो, एनीवे, लेट मी एंड द पोलिंग नाउ फाइनली। 29 people have voted and this is the result, ठीक है ना? So I'm just sharing the result. Majority यानी out of 29, 13 people have voted कि 1 और 2 में ग्राफ होगा। 6 लोगों ने बोला 2 और 3। सबसे कम पोलिंग हुआ है थर्ड वाले में, that is 2 और 4, और 7 is like in between, none of these, यानी इन क्वाड्रेंट्स में नहीं है, कुछ और क्वाड्रेंट्स में, ठीक है ना? चलो, let me start. First of all, what do you mean by field intensity? It is a force on a unit mass placed at that point. तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट प्लेस करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट पे एक यूनिट मास प्लेस करता हूँ, it will get attracted. Attracted का डायरेक्शन देखो, क्या डायरेक्शन है? माइनस आई कैप, यानी वहां पे फील्ड इंटेंसिटी होगा माइनस समथिंग। तो माइनस समथिंग अगर होगा तो कहां पे फील्ड ग्राफ होगा? फिर वाई एक्सिस के नीचे, तो यानी यहां पे ग्राफ होगा। कैसे ग्राफ होगा? Now when you go very close to the mass, the field intensity becomes infinite, it tends to become infinite, and when you go away from the mass, it reduces. तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे। ये देखो, as you are going closer and closer, you see the magnitude is increasing, देख रहे हो? लेकिन क्योंकि उस तरफ है, इसलिए मैंने नेगेटिव में प्लॉट किया, तो इसलिए क्या हो गया ना, माइनस आई कैप में फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। Now let's go to the other part, and that is here. Here if I let's say put a 1 kg mass, if I put a 1 kg mass, it will be attracted, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक m mass रखा, point mass, जो भी m mass रखा, तो ये attracted होंगे। यानी ये जो अभी मैंने पॉइंट दिखा, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा? प्लस आई कैप डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी पॉजिटिव में प्लॉट होगा। और वो सब तो है ही है कि अगर बहुत करीब चले जाओगे तो इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे ड्रॉ करेंगे? ये दोनों ही प्रोपोर्शनल टू 1/r², और अदर आई शुड से द मैग्नीट्यूड इन बोथ केसेस प्रोपोर्शनल टू 1/r², हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r² इन हियर एज वेल एज हियर। यानी ग्राफ कहां बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी सेकेंड एंड फोर्थ में ग्राफ बनेगा, ठीक है? जबकि देखो, सेकेंड और फोर्थ के लिए वोट पड़ा है सबसे कम, सेकेंड और फोर्थ के लिए वोट पड़ा है सिर्फ 3, और देखो 1 और 2 वाले का जो वोट पड़ा है वो है 13, और नन ऑफ दिस पे 7 है। 2 और 4 पे जो है सिर्फ 3 जने का वोट पड़ा है। 2 और 3 पे भी ज्यादा वोट पड़ा है।
और वैसे भी देखो एक चीज जरा लॉजिकली बताओ, 2 एंड 3 में कैसे ग्राफ हो सकता है? 2 एंड 3 वाला कॉम्बिनेशन में तो एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक चीज बताओ, मान लो चलो ग्राफ कुछ कुछ है, ग्राफ कुछ कुछ है, तो इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी के दो वैल्यू आएंगे? अगर 2 और 3 में ग्राफ बन रहा है, अगर मान लो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ बन रहा है, तो दैट केस तो एक ही पॉइंट पे दो दो इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया, उस पे तो एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए था। बाकी जज करो ना करो वो तो अलग बात है, बट कम से कम 2 एंड 3 में तो वोट नहीं पड़ना चाहिए था। इसलिए सुबह सुबह थोड़ा सा मुंह में पानी डाल दो, है ना, थोड़ा जाग जाओ। ठीक है। अब इस बार भी ये हुआ कि जो सबसे कम वोट वाला है वही जीत गया। कल भी एक बार ऐसे ही हुआ था, सबसे कम वोट वाले जीत गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम कम वोट वाले की तरफ जाओगे। इट हैज टू बी ऑल लॉजिकल। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक नाउ। तो नाउ वी कैन प्रोसीड। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ द रिजल्ट। लेट्स नाउ गो अहेड। तो यानी अभी मैं देख रहा हूं अर्नव से इसकी नींद तो सर बहुत आ रही है ना। अच्छा, आज फिटजी के केमिस्ट्री सर ने सुबह 6 बजे क्लास रखी थी। ओहो। सुबह 6 बजे, अरे बाप रे। ऐसे भी क्लास होता है। चलो एनीवे, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड वन। यहाँ पे ये m है, ये m है। अब यहाँ पे तो क्वाड्रेंट तो 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस में ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये सेक्शन 3। ठीक है, ऊपर वाले में अप, नीचे वाले में डाउन। तो आप बताओ इसका ग्राफ कैसे होगा? प्लीज ड्रॉ इट एट योर एंड। प्लीज ड्रॉ इट एट योर एंड। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। जल्दी करो। जसराज has asked a question and that is first question में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा? कब आएगा? ग्रेविटेशन में नहीं आ सकता, ग्रेविटेशन में नहीं आ सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ सकता है। यही ग्राफ हम लोग ना 12th में फिर बनाएंगे, पर वहां पे थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। ग्रेविटेशन में अनफॉर्चुनेटली ओनली अट्रैक्शन। इसलिए अगर यहाँ पे पॉइंट मास रखोगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी नेगेटिव ही हो सकता है, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दोनों टाइप का हो सकता है। इसलिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जसराज यू आर आस्किंग कि फर्स्ट और थर्ड में कब होगा, आंसर इज फर्स्ट और थर्ड में तो नहीं हो सकता, ग्रेविटेशन में नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स ऑल। ओके, भव्या इज आस्किंग कि पहला सीपीटी कौन सा है? सीपीटी आज वैसे तो डिस्कशन होके फाइनल होना है, बट कुछ ऐसे डिसीजन चल रहा है शायद कि इस नेक्स्ट वीक जो सीपीटी था ड्यू, आई मीन, वो शायद नहीं रखा जाएगा, वो शायद उसके नेक्स्ट वीक रखा जाएगा। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन आज होना है। बट कल प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुआ था तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर इन एग्रीमेंट दैट इस वीक ना रखा, मतलब नेक्स्ट वीक ना रखा जाए, उसके नेक्स्ट वीक रखा जाए। बट बिकॉज एवरीबॉडी इज नॉट प्रेजेंट तो फर्दर डिस्कशन होके आज फाइनल होगा। ठीक है ना? चलो, भव्या इज आल्सो वेरी कीन की सर आप स्कूल भी बुला लो। ओके, चलो स्टेज बाय स्टेज हो रहा है, इन द सेंस कि एक स्टेज ये हुआ कि हम लोग अब आने लगे हैं स्कूल में, और अगले स्टेज में आई एम श्योर तुम लोग भी आओगे, डोंट वरी। ओके, सोम इज आस्किंग अबाउट द सिलेबस। बेटे सिलेबस तो पूरा रोटेशन आएगा, ऑब्वियसली पूरा रोटेशन आएगा, और ग्रेविटेशन का कुछ स्टार्टिंग का पार्ट आ सकता है। ठीक है ना? दैट्स व्हाट द एजेंडा इज। चलो एनीवे, लेट्स प्रोसीड। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। आई होप यू ऑलरेडी डन इट। मैं इस पे भी पोलिंग कर सकता था, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, है ना? तो इट्स लाइक दिस दैट ये ग्राफ हो जाएगा, यहां पे जीरो भी आएगा बीच में, ठीक है ना? और यहां पे आएगा ऐसे, ये ग्राफ आएगा, और एकदम बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है? नॉइस, बट से ये कैसे हो गया? तो चलो देखो कैसे होगा। अगर मैं यहां पे 1 kg मास रखता हूं तो देखो इसका अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, ये दूर है,
वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसका अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, तो यानी यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ये देखो वो नेगेटिव में आएगा। और अगर मैं इस पॉइंट पे 1 kg मास रखता हूं तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको, वैसे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा लेकिन ये दूर है तो वो वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला, तो इसलिए नेट इंटेंसिटी क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी इस तरफ हो जाएगी। तो देख रहे हो यहाँ पे इंटेंसिटी पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव में प्लॉट हुआ, यहाँ पे इंटेंसिटी नेगेटिव है इसलिए देखो नेगेटिव में प्लॉट हुआ, और बीच में इंटेंसिटी 0 क्यों किया, दैट यू नो ऑब्वियसली, और ये m मास हो गया और ये m मास हो गया। आई होप दैट्स ओके। अब मैं एक और चेंज करता हूं, दैट्स द फाइनल वन। सो मैं आज की पिछले वाले ग्राफ में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बना, अच्छा पिछले वाले, हाँ तो देखो यहाँ पे अगर एक मास रखते हो 1 kg तो ये m क्या करेगा, उसको इधर अट्रैक्ट करेगा, नाउ दैट्स माइनस आई क्या, तो नेगेटिव हुआ ना, तो डायरेक्शन को ध्यान देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसलिए नेगेटिव होने के कारण हमने माइनस में प्लॉट किया। बट हाँ तुम अगर बोलोगे नहीं मैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट करूंगा, नो प्रॉब्लम, इन दैट केस ये थोड़ा अलग ग्राफ हो जाएगा, मैं पॉइंट मास का फिर से बना, सपोज मैं कहता हूं नहीं मुझे ना सिर्फ मॉड ऑफ ई को प्लॉट करना है, ई नहीं सिर्फ मॉड ऑफ ई, देन नो इश्यूज, तब तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, दैट्स इट। तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, दैट्स लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ इट। लेकिन फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए कायदे से वेक्टर ही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने भी वेक्टर किया है और ये करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर तुम मॉड प्लॉट कर रहे हो, अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पे भी मॉड प्लॉट करो तो कैसे हो जाएगा, फिर ये भी पलट जाएगा, ये भी यहाँ पे पलट जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा, ये भी उल्टा चला जाएगा, तो वो तो अपने आप समझ जाओ। मॉड मतलब अगर मॉड कर दोगे यानी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट करोगे तो उसका मिरर इमेज बना दो, तो दैट मच यू कैन डू योरसेल्फ। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सपोज यहाँ पे m है और यहाँ पे 4m, तो क्या चेंज होगा ग्राफ में, है ना, तो मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो, बना लो और फिर मैं इंटरवीन करता हूं, जल्दी करो। ओके, Arnav has made a comment and that is right, and that is जो E0 वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात बोला है, यानी चेंज क्या आएगा, देखो एक तो ये चेंज हो जाएगा, ये वाला जो है ना, एक्चुअली मेरे पास कलर चॉक नहीं है तो क्या करूं, कोई कुछ कर नहीं सकता, ये ऐसे हो जाएगा, ये एक काम करो मैं इसको डॉटेड बना दूं, नए वाले को डॉटेड बना दो, सो दैट मैं जक्स्टापोज करके तुमको पता चल जाएगा कि किसका कौन सा ग्राफ है। तो अगर यहाँ पे m मास रखोगे तो डार्क वाला ग्राफ है और 4m वाले का ये ग्राफ है, 4m वाले केस का ये ग्राफ है और यहाँ पे m मास वाले के लिए ये ग्राफ, ये m मास वाले, और 4m वाले के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा, तो देयरफॉर ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। मैं जक्स्टापोज करके इसलिए बना रहा हूं सो दैट तुमको भी एक फील डेवलप हो जाए कि यहाँ पे ज्यादा है कम है वगैरह व्हाटएवर। और क्या ना इसमें भी क्या होगा, मैं देखो अब 4m जो है डोमिनेट करने लगा, फिर इंटेंसिटी ओवरऑल कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो है ना कम हो जाएगा, m तो है ना सर 4m तो और बढ़ेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक जस्टापोज करके ड्रॉ करने का एक फायदा हुआ कि हमें आइडिया भी हो गया कि कैसे चेंज हो रहा है। देखो तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि अब पहले m था, अब 4m है तो थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, देन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसलिए देखो हर पॉइंट ऊपर चला गया, है ना, एंड सो ऑन, बाकी तो अपने आप डिसाइड कर सकते हो। चलो तो आई थिंक दैट वाज अबाउट ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, दैट वाज ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी with position. Okay,
इसके बाद हम लोग करेंगे फील्ड फॉर मल्टीपल मासेस, ठीक है, मल्टीपल मासेस। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कठिन नहीं है, डोंट वरी। ये हो गया ऐसे, और यहां पे m मास है, यहां पे भी एक m मास है, ये r है, r है, r है। अब बार बार इंटेंसिटी में gm/r², gm/r² gm/r² ना लिख के मैं gm/r² को एक कॉमन टर्मिनोलॉजी देता हूं, E नॉट। तो यानी फील्ड इंटेंसिटी को E नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, क्या आएगा? तो E नॉट हेंसफोर्थ जहां जहां gm/r² आएंगे वहां पे मैं E नॉट लिखने वाला हूं, सो दैट यू कैन गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ E नॉट बट इन वेक्टर टर्म्स। ठीक है, जल्दी स्टार्ट करो, मूव ऑन क्विकली। तो यानी आंसर ई नॉट के टर्म्स में देना, ठीक है। चलो गो अहेड। सर इसमें 3 मासेस हैं, 2 मासेस हैं सर। Question is to find out E at origin. Find out E at this point A. Go ahead. Dhruv, your answer is correct also, but then it will not be acceptable in this format that you are giving. ठीक है ना? That's because I have asked in vector terms. यानी तुमको I cap, J cap के terms में आंसर देना, ठीक है? चलो let me start. देखो, first of all, there will be intensity due to this mass, which is E naught in the x direction. क्यों? I cap उधर पुल करेंगे, ये वाला जो मास है वो इसको क्या करेंगे, इधर पुल करेंगे, बट ऑब्वियस। सिमिलरली ये वाला मास क्या करेंगे, इसको इधर पुल करेंगे। इंटरेस्टिंगली वो भी E नॉट ही होगा, बट उसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, E नॉट cos 60 डिग्री I कैप, sin 60 डिग्री J कैप। तो ये हो गया 60 डिग्री एंगल, यानी टोटल E at A will be equal to E नॉट I कैप प्लस ये वाला, ये तो E नॉट I कैप हो गया, ये वाला हो गया E नॉट इनटू सम कंपोनेंट प्लस E नॉट इनटू cos 60 डिग्री I कैप प्लस sin 60 डिग्री J कैप इज इक्वल टू E नॉट I कैप प्लस E नॉट इनटू cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, तो ये 1/2 I कैप प्लस sin 60 डिग्री √3/2 J cap. Simple as that. So therefore, कुछ आंसर्स आया है, अरियंत ने दिए तो है, पर अरियंत का आंसर थोड़ा सा मिस्टेक है। देहम, तुम्हारे आंसर भी थोड़ा सा मिस्टेक है। सानिया's आंसर आई थिंक प्रोबेबली इज करेक्ट ना, उसमें भी एक दिक्कत है, उसमें √3/2 नहीं है ना। चलो, anyway, so now we can write it as E naught plus E naught by 2, that is 3/2 E naught plus, sorry, I cap plus √3/2 E naught J cap. एग्जैक्ट आंसर अभी किसी का आया नहीं है। सानिया वाज नियरेस्ट, बट देन उसमें एक √3/2 नहीं आया, बाकी तो सही है। Now these were examples of intensity due to either one mass or two masses, or it can be more than that also. So that is about electric field intensity due to particles. अब हम बात करेंगे electric field intensity due to distributed mass. Let's see.
ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड मास। सबसे पहला क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजियर टाइप का, इसलिए मैं इसी को पहले दे रहा हूं, दैट इज सपोज आई हैव अ रिंग and on the axis of the ring, and the ring is suppose of radius r, and at the axis of the ring at a distance x there is a point P. Find out EP. This time I have not asked vector form because what I am more interested in is the magnitude rather than the direction. Direction तो obviously towards the center of the ring होगा, है ना। अगर मान लो एक मैं रिंग लेता हूं जिसका मास सपोज कैपिटल M है या स्मॉल m, चलो कुछ भी ले लो, कैपिटल M ले लो, चलो। अगर इसके उसका मास मान लो कैपिटल M है और उसका रेडियस कैपिटल R है, और अगर उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, इन दैट केस जो इंटेंसिटी बनेगा दैट विल ऑब्वियसली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग। तो देयरफॉर इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग। सो दिस विल बी द E at point P, इस तरह towards the center of the ring. My only question is what will be the magnitude? Go ahead. ये easy question है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, just go ahead and find it out. I'm waiting for the answer. Question is to find out the gravitational field intensity at an axial point x distance from the center of the ring. So E, that is gravitational field intensity at an axial point of a ring. And the specifications are that the mass of the ring is capital M, the radius of the ring is capital R, and I am interested in finding out the intensity at a point which is x distance from the center of the ring. That's more or less the specification of the question. Okay, Dhruv Sharma has almost given an instantaneous answer. So he has already given the answer in fact, and that is gmx by r square plus x square to the power 3 upon 2. Interesting answer. Okay, I'm just waiting for somebody else. Rishabh says कि नहीं 2 gmx by r square plus x square to the power 3 by 2. Okay, so the difference is only in the factor of 2. ध्रुव के पास जो आंसर है या ध्रुव ने जो आंसर दिया उसमें 2 नहीं है और ऋषभ के आंसर में 2 है, बाकी सब सिमिलर है। So the answer that I'm getting is either gmx by r square plus x square। एक जने का ये आंसर है और एक जने में 2 आंसर है, 2 भी है। That's the difference है। अभी मैंने कोई कमिट नहीं कर रहा हूं। देव से इसके हाँ मुझे जो है आदित्य माथुर ने भी आंसर दिया gm by x into root under। अच्छा ओके, like Aditya is going to slightly different answer, gm by x into under of x square plus r square plus x square। Okay, somebody says कि 2 नहीं होगा, somebody says कि 2 होगा, somebody says typing हो गया गड़बड़, somebody says कि gmx वाला आंसर सही है यानी 2 नहीं होगा, वो टाइप गलती से हो गया, etc etc। Okay, let me take these 2 answers. First of all, I am not committing which one is the correct or if anybody is correct at all. I'm not committing अभी, लेकिन एक चीज मैं कमेंट कर सकता हूं, क्या कि इसके आंसर सही होने का चांस है, ये वाला आंसर सही होने का कोई चांस नहीं। हम लोग ये कैसे बता रहे हो? मैं जरा एक चीज बताओ, अगर मैं रिंग के सेंटर पे हूं तो अगर मैं रिंग के सेंटर पे हूं तो लेट्स से अगर रिंग है तो वो इधर अट्रैक्ट करेगा, वो इधर है, वो इधर, वो इधर, वो इधर, यानी कि वो चारों तरफ से अट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा, the net field intensity at the center of the ring will be what, 0 होगा या नहीं। यानी रिंग के सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होना चाहिए, तो रिंग के सेंटर पे 0 का मतलब क्या हुआ कि at a distance x equal to 0 the intensity should be equal to 0। यानी अगर मैं x को 0 करता तो सेंटर पे आ गया, यानी जो भी फार्मूला होगा उसमें क्या है ना, at x equal to 0 e should be equal to 0। क्या वो सेकंड एक्सप्रेशन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? ये देखो gm by x है और r square plus x square का तो x square 0 हो गया, तो फिर तो x अगर 0 डिनोमिनेटर में है तब तो इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो गया ना। तो therefore this is not possible, therefore this is not possible। यानी क्या हो गया, ये तो नहीं सही है, ये सही होने का चांस तो है, क्योंकि अगर x को 0 पुट करता तो इंटेंसिटी 0 आ रहा है। सही है या नहीं गलत है वो तो खैर
कंफर्म करके पता चलता है, लेकिन एक इंडिकेशन तो मिल गया ना कि कहीं ये गलत है या वो सही है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। अब एक काम करता हूं, यहां पे डीएम मास ले लेता हूं कहीं पे भी, ये तो आर है, लेट मी ड्रॉ दिस। ये जो डीएम मास है ये यहां का रखा हुआ 1 kg, क्योंकि इंटेंसिटी निकालना होता है तो 1 kg मास रखा जाता है वहां पे। इस मास को अट्रैक्ट करेंगे कितने फोर्स से, G dm by this value which is r square plus x square, ठीक है, which is r square plus x square। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि ऐसे एक और डीएम अगर यहां पे भी लेंगे तो वो भी इधर अट्रैक्ट करेंगे। तो जरा देखो ये जो दो फोर्सेस आया है, ये जो दो फोर्सेस आया है, इसके इधर एक कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा, इस वाले का भी इधर एक कंपोनेंट होगा, इधर एक, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली व्हिच कंपोनेंट विल सर्वाइव, इट इज ओनली द कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस, यानी कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर, वही सर्वाइव करने वाला है। तो फिर बाकी हटा दो। अगर ये थीटा है मान लो, तो ये जो इंटेंसिटी अभी निकाला मैंने, ये वाला, ये डीई कह लो, चलो इसको, तो ये हो गया डीई। लेकिन डीई फाइनली नहीं रहेगा, फाइनल रहेगा डीई cos थीटा। तो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, इनटू cos थीटा का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा नेट इंटेंसिटी। cos थीटा क्या है, x अपॉन अंडर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये जो g dm बाय दिस है सब तो कांस्टेंट है, यहां पे r भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, ध्यान रखना। तो देयरफॉर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा इज x बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm क्या होगा, इंटीग्रेशन dm क्या होगा, dm इज व्हाट, m, यानी m हो गया 0 टू कैपिटल M। यानी फाइनली कितना हो गया, वीडियो फ्रीज हो गई। gmx वाला आंसर था एकदम सही है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। दैट इज द इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। देखो रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो मास, फ्रीज हो गई। आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटेड दैट। अब मैं एक काम करता हूं, सर वीडियो फ्रीज हो गई। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा अलग, दिस वाज क्वाइट इजी है सर now I'm giving you a finite wire of lambda is equal to mass per unit length। चलो I think now let's continue। So what we were wanting to discuss was finite wire of certain length। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूं और उसकी वजह से इंटेंसिटी निकालना है। तो लेट अस से ये एक फाइनाइट वायर है और मुझे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है, और वो भी कोई सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं, एसिमेट्रिकल पॉइंट, ठीक है ना, एसिमेट्रिकल पॉइंट पे मुझे जो है इंटेंसिटी निकालना है। फाइन, जस्ट अ सेकंड। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और ये वाला पार्ट r डिस्टेंस दूर है, और ये वाला r डिस्टेंस दूर है, और ये हो गया अल्फा, और ये जो एंगल है ये है लेट्स से बीटा। ठीक है, नाउ यू टू फाइंड आउट, ओके वेल देयर इज एन इंटरेस्टिंग लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लॉजिक है, अभी जो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ये लॉजिक से कई बार गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से थोड़ा सुनना। व्हाट देहम इज आस्किंग इज दैट आपने पिछले बार 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, आपने पिछले बार 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया।
Now that's an interesting facet, क्योंकि मैंने देखा था आंसर्स में, अभी जो थोड़ी देर पहले आंसर्स आए थे उसमें कईयों के 2 थे, कईयों के 2 नहीं थे, तो वो 2 वाला पार्ट इट सीम्स के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया है। चलो लेट मी सॉर्ट इट आउट। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहां पे एक डीएम लिया था और मैंने यहां पे इंटेंसिटी निकाला, ये हो गया डीई, है ना, और यहां पे था डीई कॉस थीटा। फिर मैंने बोला कि अगर मैं एक और डीएम यहां पे ले लूंगा तो इन दैट केस उसकी वजह से भी ऐसी एक डी बनेगा इस तरफ, और वो भी जो है ना, ये इसका इधर वाला कंपोनेंट और इसका इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर यही वाला बचेगा सिर्फ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब अगर तुम इंटीग्रेशन करना चाहते हो ना तो इन दैट केस इंटीग्रेशन को तुम दो तरीके से कर सकते हो। तरीका नंबर 1 कि मैंने सिर्फ लॉजिक के लिए आर्ग्यू किया कि भाई देखो डी का और डी का वर्टिकल वाला कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर टू एक्सिस कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ एक्सिस वाला कंपोनेंट ले लो, तो यानी डीई cos थीटा ले लो। यू माइट से नहीं जो दूसरा वाला डीएम है उसका भी तो ले लो, तो फिर तो 2d cos थीटा हो गया। चलो ठीक है, मैं ले लेता हूं 2d cos थीटा। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होगा, जब तुम डीएम का इंटीग्रेशन का लिमिट सेट करोगे तो अगर तुम दोनों डीएम को इकट्ठे ले लिए तो डीएम 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 बस आधे में तुम्हारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। इन दैट केस लिमिट्स फिर लेना पड़ेगा 0 to m/2। इसको समझो, यानी अगर तुम दोनों को इकट्ठे लेना चाहते हो 2d cos थीटा लेना चाहते हो, आई हैव नो इश्यूज, तो अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो 2de cos थीटा, इन दैट केस लिमिट्स होगा 0 to m/2, तो वो बराबर हो जाएगा 2 कैंसिल होगा। और अगर तुम इस लॉजिक को यूज करते हो कि मैं सिर्फ डीएम का इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट यानी एक्सिस वाला कंपोनेंट यूज करूंगा, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो हो जाएगा डीई cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से m, इसलिए ट्वाइस वाला फैक्टर नहीं आएगा। तो अगर तुम सिर्फ डीएम लेते हो तो डीएम 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 पूरा, और अगर तुम दोनों को इकट्ठे लेते हो तो इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में डबल आएगा, लेकिन जब लिमिट्स लोगे तो डीएम 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 इतने में तुम्हारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तो आधा ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्वाइस नहीं आएगा। ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट। अरियंत यू आर राइट, बिल्कुल वही m/2 का लिमिट होगा और फिर वो एडजस्ट होके सही हो जाएगा, एकदम सही बोला है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस, आई होप दिस लॉजिक इज नाउ क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। वैसे ये 2 वाला जो लॉजिकल फैलेसी है ना, ये कई और जगह तुमको आगे मिलेंगे। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड हाउ आई हैव आर्ग्यूड, एंड इन फ्यूचर व्हेनेवर देयर आर सिमिलर सिचुएशंस यू विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। चलो अब इसको स्टार्ट करो। इसमें क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं काम करता हूँ, इसको जो है ना मैं खुद ही स्टार्ट करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट माई सेल्फ। ठीक है, अगर व्हाट आई डू इज दैट, let me take a small mass at y distance away from this point. At y distance away, let me take a very small section of length dy. Mind you, lambda is the mass per unit length. So we know that lambda is equal to dm by dl. तो dm क्या होता है lambda dl, where dl is the small length. इस केस में तो dy, तो यानी यहां का जो dm होगा वो होगा lambda into dy, और उसके वजह से अगर मैं यहां पे एक लाइन ज्वाइन करता हूं उसके वजह से एक इंटेंसिटी बनेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक एंगल थीटा ले लेता हूं, तो वो जो इंटेंसिटी बन रहा है de वो क्या बनेगा, यानी de will be equal to g lambda dy gm by r square। r square बोलते क्या हो जाएगा, y square plus r square, ये वाला, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ, यानी अब ये जो इंटेंसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, है या नहीं। तो एक कंपोनेंट बनेगा along ये वाला,
तो ये तो हो जाएगा DE, ये हो गया DE, ये हो जाएगा DE cos थीटा। तो therefore एक कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर टू द वायर है, तो यानी D परपेंडिकुलर क्या होगा, D cos थीटा। तो therefore you have DE perpendicular is equal to DE cos theta is equal to G lambda dy by r square plus y square, और cos theta क्या होगा, r upon under root of r square plus y square into r upon under root of r square plus y square। तो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, जगह कम है, क्या करें, ठीक है ना, is equal to G lambda dy by r square plus y square into r upon under root of r square plus y square। ये हो गया D परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, E परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा G lambda r dy by r square plus y square to the power 3/2। अब हम यहां पे लगाएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट अस सब्स्टिट्यूट क्या ना, y is equal to r tan theta, y is equal to r tan theta, so you have dy d theta is equal to r sec square theta। तो मैं dy को रिप्लेस कर सकता हूं r sec square theta d theta से, so therefore this E perpendicular will become G lambda r को तो रहने दो, G lambda r को रहने दो, dy को लिख दो r sec square theta d theta, so this becomes r sec square theta d theta by, now how much will be r square plus y square, तो y तो हो गया r tan theta, so therefore r square plus y square is equal to r square plus r square tan square theta, यानी r square sec square theta, ठीक है। तो यानी हो जाएगा r square sec square theta to the power 3/2 है, r square sec square theta to the power 3/2 क्या होगा, r cube sec cube theta, यानी मैं इसको थोड़ा सा स्टेप जंप कर रहा हूं, इतना तो कर ही सकता हूं मैं, तो therefore it will become r cube sec cube theta, यानी क्या हो रहा है देखो, एक r यहां का, एक r यहां का, एक r यहां का कैंसिल हो गया, एक r रह गया, तो दिस विल बी इक्वल टू G lambda by r into sec square theta sec cube theta कैंसिल हो गया, एक sec theta रह गया, वो ऊपर जाएगा तो cos theta हो जाएगा, is equal to into cos theta d theta is equal to G lambda by r into sin theta। I hope now it's okay, ठीक है। अब एक काम करो, लिमिट्स का सेटिंग क्या होगा, देखो ये जो y है इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, थीटा, थीटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहां से स्टार्ट करो, और थीटा बढ़ते 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 देखो यहां तक जाएगा, यानी जीरो से लेके, अगर इस पोर्शन को करते हो तो जीरो से लेके बीटा तक, और नहीं तो एक काम करो, क्योंकि थीटा मैंने इधर से लिया है, तो अगर तुम उधर वाला एंगल को इंक्लूड करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा से लेके बीटा तक, ये भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो therefore I can also write the limits as minus alpha to beta, क्योंकि मैंने इधर वाला एंगल थीटा लिया, अल्फा उस तरफ है तो उल्टे तरफ है, तो माइनस लिखने में कोई परेशानी नहीं है, यानी माइनस अल्फा टू बीटा, तो क्या होगा, माइनस अल्फा टू बीटा, यानी माइनस अल्फा टू बीटा, यानी इसका एक्सप्रेशन आ गया G lambda by r into sin अल्फा प्लस, ये हो जाएगा E परपेंडिकुलर। इसका एक स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस क्या है, कि अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच करके इनफाइनाइट बना देता हूं, यानी अगर मैं अब यहां पे लिख देता हूं, है ना, दिस इज अ फाइनाइट, तो स्पेशल केस क्या,
ना फॉर इनफाइनाइट वायर क्या होगा, अल्फा विल बी बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो देखो अल्फा और बीटा, देखो जितना इस वायर को स्ट्रेच करोगे तो अल्फा बढ़ गया, इस वायर को इधर स्ट्रेच करो तो बीटा भी बढ़ गया, यानी जैसे जैसे वायर को स्ट्रेच करके और दूर ले जाओगे तो अल्फा का वैल्यू बढ़ता जा रहा है और नीचे बीटा का भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो कहां तक जाएगा, 90 डिग्री तक। तो sin 90 प्लस sin 90 क्या होगा, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा g लैम्डा बाय r, यानी E परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 2g lambda by r. So that is the E perpendicular due to a infinite wire. ठीक है, that is the case. यानी E perpendicular due to infinite wire will become equal to 2g lambda by r. But अगर finite wire हुआ तो in that case जो वायर है उससे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करता हूं पॉइंट पे, तो उसके ऊपर वाला एंगल अल्फा और नीचे वाला एंगल अगर बीटा होता है तो वो एंगल अल्फा और बीटा पे डिपेंड करेगा और आंसर होगा g lambda by r into sin alpha plus sin beta। इनफैक्ट इसी का यूटिलाइजेशन करके हमने इनफाइनाइट वायर का इंटेंसिटी फाइंड आउट किया। ठीक है, नाउ क्रिश इज आस्किंग कि सर वो दूसरा कंपोनेंट आपने कहां छोड़ दिया ना, दूसरा कंपोनेंट कल के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन है। आई थिंक 2-3 मिनट्स लगेंगे, 4-5 मिनट लगेंगे, तो आई थिंक खुद भी कर सकते हो, कल तो उसके लेके शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज है कि इनफाइनाइट वायर में दूसरा वाला कंपोनेंट का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा, अगर इधर एक डी होता है तो एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। सिमिलरली अगर इधर कोई डी होता है तो उसका इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट, तो ये एक बड़ा है एक छोटा है, तो अभी फिलहाल तो कैंसिल होते हुए नहीं दिखता है। लेकिन अगर मान लो इनफाइनाइट वायर हो जाए तो इधर वाले का ऊपर का कंपोनेंट और नीचे वाले का नीचे का कंपोनेंट, ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे क्योंकि अब तो सिमेट्रिकल हो गया। तो देयरफॉर इनफाइनाइट वायर में जो दूसरा कंपोनेंट है वो जिक्र नहीं करेंगे हम लोग, जरूरत नहीं है। तो इनफैक्ट मैं पहले से लिख देता हूं, वो जो दूसरा कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट डी परपेंडिकुलर, दिस विल बी कॉल्ड एज डीई पैरेलल। ये भी जो है यहाँ पे डीई पैरेलल है। तो इनफाइनाइट वायर के केस में कम से कम इतना जरूर क्लेम कर सकते हैं कि डीई पैरेलल विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि सिमेट्री के कारण क्या होगा, कैंसल आउट कर जाएगा। दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना। चलो, तो हमने अभी क्या किया ना, फाइनाइट वायर के ऊपर एनालिसिस किया और फाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर टू द वायर वाला जो कंपोनेंट है वो कितना होगा उसका हमने इंटीग्रेशन करके रिजल्ट निकाला और उसी रिजल्ट को स्ट्रेच करके इनफाइनाइट वायर के लिए बना दिया by putting or substituting alpha and beta both as 90 degree. There is also a concept of what is called as semi infinite wire, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई थिंक आज इतना ही करते हैं, उसको कल डिस्कस कर लेंगे। सो टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस वायर एंड देन वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स ऑन कर्व्ड वायर्स, स्पेशली सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल और सम सच थिंग। जैसे आज हमने रिंग का किया, रिंग के एक्सिस पे किया, बट अगर रिंग के एक्सिस ना होकर अगर कोई कटा हुआ वायर का एक्सिस हुआ तो क्या करोगे, एंड सो ऑन। सो देयर कुड बी मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट। तो हम लोग ये सब चीजें जो है कल डिस्कस करेंगे। तो टुमारो विल बी फोकसिंग ऑन वायर अगेन एंड इफ टाइम परमिट्स देन वायर के बाद हम लोग ऑब्वियसली, अच्छा नहीं टुमारो तो नहीं, अब तो मंडे। चलो ठीक है, इन दैट केस बिफोर आई वाइंड अप फॉर द डे, please remind I would remind you again, and that is on Sunday I would again expect the same thing, and that is what I have done in the last week or rather this week। उसका रिपोर्ट जो है जरूर भेज देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, we will carry on in the next class। तो मंडे की छुट्टी होगी। देव सेज कि ये तो बायोट-सावर्ट्स लॉ से मिलता जुलता है। You are right, to an extent you are right। चलो अब हम लोग इसको कल कंटिन्यू करेंगे। Have a good day। Thank you, sir। आदित्य माथुर इज आस्किंग क्या मंडे हॉलीडे है? अभी जब तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होता है तो देयर इज नो हॉलीडे। ठीक है ना, चलो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, देहा में दास की वो जो आप 12th का रिवीजन कराते हो क्या वो हमारे काम के हैं? बिल्कुल काम के हैं। अगर वो वीडियोस फॉलो करना चाहे तो कर सकते हो, नो इश्यूज। चलो ओके बेटा, आज के लिए।